Alright, so after knowing what personality is, it is important for all the psychology students to know how to assess personality. किसी इंसान की personality को कैसे assess करते हैं, to know कि उनमें क्या क्या traits हैं, उसके there are certain methods. So there are 4 basic methods that are used to assess personality. The first one is the interview method. Then we have projective techniques. Projective techniques are not objective in nature, they are subjective. However, जो projective techniques हैं उनको objectify करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी गई है so as to increase their reliability and validity. Apart from that, we have behavioral assessments also. Behavioral assessments are there because काफ़ी सारे psychologists का ये मानना था कि personality is just a set of behaviors or habits that we learn from our experiences. So that is why behavioral assessments are sometimes also used to assess personality. And then we have personality inventories. So what are interviews? In the interviews that we use for personality, these are different from a job interview. We all know what job interviews are. वहाँ पर आपकी strengths and weaknesses की बात करी जाती है and it is basically there to know if you're perfect for the job or not. But these interviews are not like a proper job interview because they are not as structured as a job interview. वो एक specific set of questions नहीं होता है personality interviews में जैसा job interviews में होता है. So these are rather unstructured in nature and they flow naturally from the beginning dialogue between the client and the psychologist. So जैसे जैसे बात चलती जाती है उसी के साथ वो एक flow में चलता जाता है. It is not supposed to be as structured as a job interview. And it is basically a dialogue between the client as in the person whose personality is to be assessed, and the psychologist. In personality interviews, clients can easily lie. वो लोग आराम से झूठ बोल सकते हैं. जो actual सच है उसको आगे पीछे कर सकते हैं, distort कर सकते हैं. They may also misremember things. Misremember as in कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमें अपने पास्ट की ना याद हो. So they may also misremember things or give what they think is a socially acceptable answer instead of true information. So कई बार personality interview में a person may give an answer to a question that is comparatively acceptable in the society rather than their true feelings. So if especially this happens, especially when questions related to sexuality are asked, they would rather give a answer that is socially acceptable than representing their true feelings. So also one more important thing here is कि job interview में a person is not as biased as a person is when it comes to personality interviews. Why? Because यहाँ पर interpretation बहुत ज़्यादा subjective होता है. It depends upon कि एक person के अपने क्या belief values हैं, क्या उनके prejudice हैं, क्या उनके belief systems हैं, उसके बेसिस पे एक इंटरव्यूअर एक क्लाइंट को इंटरप्रेट कर रहा होता है विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली. सो दैट इज वाई यहाँ पर इंटरव्यूअर्स खुद भी काफ़ी बायस हो सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ क्लाइंट लाइंग और डिस्टॉर्टिंग द ट्रूथ. Freud certainly did this when he refused to believe that his parents had actually been sexually molested as children, preferring to interpret that information as a fantasy instead of reality. So यहाँ पर an example of this subjective interpretation is of Freud. फ्रॉइड ने मतलब इट हैज़ बीन बिलीव्ड कि फ्रॉइड ने काफ़ी ज़्यादा बायस होकर के अपने क्लाइंट्स के इंटरव्यूज़ लिए थे, पर्सनालिटी इंटरव्यूज़, बिकॉज कुछ उनके क्लाइंट्स थे जिन्होंने ये बोला था दैट दे वर सेक्सुअली मोलेस्टेड व्हेन दे वर a child, and Freud actually interpreted as that this is not reality, this is not what actually happened, this is actually their fantasy, their sexual desires that were repressed in their childhood, and because of that they are having this fantasy that they were sexually molested as a child. So Freud has done this thing.
अनदर प्रॉब्लम विद इंटरव्यूज इज समथिंग कॉल्ड द हैलो इफेक्ट. एक और प्रॉब्लम इंटरव्यूज में ये हो सकती है कि हैलो इफेक्ट हो सकता है. हैलो इफेक्ट मैंने एटीट्यूड साइकोलॉजी में पढ़ाया था. आई डोंट नो स्मृति इफ यू वर प्रेजेंट इन दोज क्लासेस और नॉट. वर यू देयर? अच्छा, ओके, ठीक है. सो बेसिकली हैलो इफेक्ट में क्या होता है कि अगर मतलब अगर मुझे एक इंसान के बारे में एक बात पता है या उसका एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक पता है, तो आई विल अज्यूम दैट रिलेटेड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें होंगे. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई नो दैट अ पर्सन इज ऑनेस्ट, आई विल अज्यूम दैट द पर्सन इज ट्रूथफुल ऑल्सो, दैट द पर्सन विल नेवर चीट मी. तो अगर इफ आई हैव अ बॉयफ्रेंड और मुझे पता है दैट ही इज ऑनेस्ट, तो मैं मान लूंगी कि ये बंदा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा. ही विल लाइक मी ऑल्सो, ही विल नेवर डिच मी. सो दिस इज कॉल्ड हैलो इफेक्ट. रिलेटेड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके साथ में अज्यूम कर लेना, दैट इज हैलो इफेक्ट. सो दिस ऑल्सो हैपन्स इन इंटरव्यूज. इंटरव्यूज के बाद वी हैव प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. Projective techniques are indirect and unstructured methods of investigation which have been developed by the psychologist and use projection of respondents for inferring about underlying motives, urges or intentions which cannot be secured through direct questioning. So projective techniques एक तो स्ट्रक्चर्ड मेथड्स नहीं होते हैं और डायरेक्ट नहीं होते हैं. दीज आर रादर इनडायरेक्ट एंड अनस्ट्रक्चर्ड इन नेचर. व्हाई इनडायरेक्ट? बिकॉज यहाँ पर आप डायरेक्टली जो चीज़ आप जानना चाहते हो, आप उसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हो, आप रादर उसको किसी फॉर्म में अंदर से निकलवाते हो. दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टिव. मतलब ऐसी टेक्निक्स कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट में यूज होती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा दैट यू आर सपोज टू कंप्लीट, या फिर आपको एक पिक्चर दिखा दी जाएगी जिसकी आपको स्टोरी बनानी है. तो मैं डायरेक्टली नहीं पूछ रही हूँ आपसे कि आपकी किस टाइप की पर्सनालिटी है या आप क्या करते हो लाइफ में या आपकी कोई सेक्सुअल फैंटेसीज हैं या नहीं. मैं आपसे एक स्टोरी बनवाऊंगी और फिर मैं देखूंगी कि वो स्टोरी में आपने क्या प्रोजेक्ट किया है अपॉन द मेन हीरो ऑफ दैट स्टोरी. आई विल रादर, मी एज एन इंटरव्यूअर वुड रादर बिलीव कि आपने जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी उस स्टोरी के हीरो में डाले हैं वो आपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स उस बंदे में डाले हैं. ठीक है. आपने अपनी फीलिंग्स को उस हीरो पर प्रोजेक्ट किया है. दैट इज वाई दीज टेस्ट आर कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट. यहाँ पर हाँ जी, देखो, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा है फ्रॉइड का. नहीं, दैट इज नॉट प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन इज अपनी फीलिंग्स को दूसरे पर प्रोजेक्ट करना. तो अगर मैं तुमसे बोल रही हूँ कि स्मृति, यू आर वेरी प्रेजुडिस्ड, सो मे बी कि मैं खुद प्रेजुडिस में बिलीव करती हूँ, मैं खुद बहुत डिस्क्रिमिनेशन करती हूँ, इसलिए मैंने अपनी इस फीलिंग को तुम पर डाल दिया. ठीक है. दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ऐसे ही कुछ होता है. आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते हो क्लाइंट से अबाउट हिज और हर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. आप रादर उनसे कोई स्टोरी बनवाते हो कि उनको एक पिक्चर दिखा दी और उनको उस पर स्टोरी बनानी है, या फिर आपने एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दे दिया और उनको उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. और आप ये मान करके चलते हो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में कि उस स्टोरी में जो मेन हीरो है, क्लाइंट ने अपनी फीलिंग्स को उस हीरो की फीलिंग्स के साथ एसोसिएट करके डाला है. तो जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स उसने हीरो के बनाए हैं वो उसके खुद के पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उसने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को उस हीरो में प्रोजेक्ट किया है, इसीलिए इनको प्रोजेक्टिव टेस्ट बोलते हैं. ठीक है. तो इससे यूजुअली अंडर मतलब कई बार हो सकता है क्लाइंट कुछ चीजें छुपा रहा हो या फिर उसको खुद के अपने रिप्रेस्ड अंडरलाइंग मोटिव्स ना पता हो. ऐसे केसेस में हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज करते हैं जहां पर या तो क्लाइंट खुद ही अवेयर नहीं है अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में या फिर हमें लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है. ठीक है. तो ऐसे में हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज करते हैं और इससे अंडरलाइंग मोटिव्स निकलते हैं, यानी कि जो अनकॉन्शियस में छुपी हुई डिजायर्स हैं, मोटिव्स हैं, अर्जेस हैं, वो निकलते हैं जिनको आप डायरेक्ट क्वेश्चनिंग से नहीं निकाल सकते हो. ऐसी चीजों को प्रोजेक्टिव टेक्निक से इनडायरेक्टली निकलवाया जाता है. ठीक है.
The hope is that The hope is that the client will project their unconscious concerns and fears onto the stimulus, revealing them to the analyst. यानी कि ये होप किया जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि जो क्लाइंट है वो अपने अनकॉन्शियस कंसर्न्स को, अपनी अनकॉन्शियस फीलिंग को उस स्टिमुलस पर डालेगा. उस स्टिमुलस यानी कि जो भी आपने पिक्चर दिखाई है उसमें जो पर्सन है या जो सेंटेंस है उसमें जो हीरो है उस पर अपनी अनकॉन्शियस कंसर्न्स को प्रोजेक्ट करेगा. और ऐसे ही जो एनालिस्ट है यानी कि जो इंटरव्यूअर है, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, वो उसको उस तक रिवील हो जाएंगी ऐसी अनकॉन्शियस डिजायर्स और फीलिंग्स. टेस्ट यूजिंग दिस मेथड्स आर कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट. Although such tests can be used to explore a client's personality, they are more commonly used as a diagnostic tool to uncover problems in personality. अब यहाँ पर ये लिखा है कि ऑल्दो प्रोजेक्टिव टेस्ट को आप सिर्फ पर्सनालिटी के बारे में बेहतर जानने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्टिव टेस्ट को ज़्यादातर एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज़ किया जाता है. डायग्नोस्टिक टूल का मतलब क्या हुआ कि किसी डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए या सिम्टम्स को निकालने के लिए, प्रॉब्लम्स को अनकवर करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो ऑल्दो सिर्फ क्लाइंट की पर्सनालिटी जानने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ होते हैं. ठीक है. अब एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट. ये बहुत कॉमनली यूज होता है, हम सब ने इसका नाम सुना होता है. रोशाक, TAT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ऐसे बहुत सारे होते हैं. सो रोशाक इज अ वेरी वेल नोन प्रोजेक्टिव टेक्निक. ठीक है. एंड दिस वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1921. Please note it down. Rorschach was developed in the year 1921 by the Swiss psychiatrist Hermann Rorschach. Hermann Rorschach. The pronunciation is Rorschach, but the spelling is RORSCHACH. So this is a mnemonic that I am telling you. मैंने इस स्पेलिंग को, मतलब रोशाक की स्पेलिंग में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है. मैंने इस स्पेलिंग को ऐसे याद किया था कि इट्स रॉर्स एंड देन छाछ. छाछ हैज इन बटर मिल्क. ठीक है. सो इट्स रॉर्स छाछ. सो यू गेट द राइट स्पेलिंग एवरी टाइम. जब से मैंने इस स्पेलिंग को ऐसे याद किया है मेरे से कभी गलती नहीं होती. So yeah, this was developed in the year 1921 by Swiss psychiatrist Hermann Rorschach. Rorschach में 10 इंक ब्लॉट होते हैं. इंक ब्लॉट यानी कि इंक के धब्बे टाइप से अलग अलग डिसफिगर्ड सी इमेजेस होती हैं जो इंक से बनी होती हैं. इन 10 में से 5 ब्लैक इंक से होते हैं, वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक के होते हैं, और 5 कलर्ड होते हैं. बैकग्राउंड हम दोनों में ही वाइट होगा. 5 कलर्ड होते हैं और 5 ब्लैक होते हैं. People being tested are asked to look at each ink blot and simply say whatever it might look to them. यानी कि जिन लोगों पर रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट किया जाता है उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उनको उस इंक ब्लॉट को देखना है और जो भी उनको समझ आ रहा है उसे देख करके वो बोलना है कि मतलब वो इंक ब्लॉट क्या दिख रहा है उनको. Using predetermined categories and responses commonly given by people to each picture, psychologists score responses on key factors. यानी कि रोशाक इंक ब्लॉट ऑब्वियसली थोड़ा सब्जेक्टिव होता है. थोड़ा क्या है, इट इज़ अ सब्जेक्टिव टेक्निक, बट जिससे कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, अगर वो सब्जेक्टिविटी आ भी रही है तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आए, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बढ़ जाए. इसीलिए जो भी आंसर्स होते हैं उनको एक कैटेगोरिकल फॉर्म में, उन रिस्पॉन्सेस को प्री डिटरमाइंड कैटेगोरिकल फॉर्म में उन रिस्पॉन्सेस को स्कोर किया जाता है. ठीक है. इसमें कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि कलर को क्या रेफरेंस दिया गया है, शेप को कैसे समझा गया है, फिगर्स को क्या माना गया है. ठीक है. और रिस्पॉन्स पूरी इमेज का ओवरऑल होल में दिया गया है या फिर हर डिटेल पर फोकस किया गया है. ऐसी चीज़ों के बेसिस पर स्कोर किया जाता है रोशाक के आंसर्स को. रोशाक, जो हर्मन रोशाक थे, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इंक ब्लॉट्स खुद पर टेस्ट किए थे और फाइनली उन्होंने इन थाउजेंड्स में से नैरो डाउन करके 10 निकाले थे जिनको आज भी यूज़ किया जाता है.
They are still frequently used to describe personality, diagnose mental disorders and predict behavior. यानी कि आज भी इनको पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए और बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कलर्ड रोशाक इंक ब्लॉट। सो इसको देख करके एक इंसान को क्या लग रहा है कि दो लोग ऐसे हाथ मिलाकर खड़े हैं या फिर ये एक बैट है, क्या है, इस टाइप से एक स्टोरी के फॉर्म में बताना होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लैक एंड व्हाइट इंक ब्लॉट, रोशाक इंक ब्लॉट, ठीक है। Then we have thematic apperception test. This is also a bit like Rorschach. So basic एक structure उसी टाइप का होता है, but this is more commonly used. ठीक है। This was developed in the year 1935. Note it down. Developed in the year 1935 by psychologist Henry Murray and his colleagues. बेसिकली टीएटी में 31 पिक्चर्स होती हैं, सारी की सारी ब्लैक एंड वाइट होती हैं और ये क्लाइंट को दिखाई जाती हैं। जैसे रोशाक में आपने देखा कि इंक ब्लॉट्स थे, यहाँ पर इंक ब्लॉट्स नहीं होते, यहाँ पर प्रॉपर पिक्चर्स होती हैं जिसमें ह्यूमंस या एनिमल्स हो सकते हैं, प्रॉपर बैकग्राउंड होता है। उस एक इमेज के ऊपर क्लाइंट को एक पूरी स्टोरी फॉर्म करनी पड़ती है जिसमें वो स्पेसिफाई करेगा जितने भी लोग उसको उस इमेज में दिख रहे हैं उन पर, और एक सिचुएशन सी फॉर्म करनी होती है, एक पूरी स्टोरी कहानी बनानी होती है, एक मूवी डायरेक्ट करनी होती है, ठीक है। ऑल्सो फोकस किया जाता है इस चीज़ पर कि प्रेजेंट की आप बताओ आपके अकॉर्डिंग इस इमेज में प्रेजेंट में क्या हो रहा है, what has led to this situation, यानी कि पास्ट में क्या हुआ होगा और आगे रिजल्ट्स क्या होंगे। सो बेसिकली अ फोकस इज गिवन ऑन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। जो भी लोग दिख रहे हैं इमेज में उनके मूड को भी बताना होता है कि वो किस टाइप का मूड है उनका, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या होगा आगे, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। अगेन द स्टोरी डेवलप बाय द क्लाइंट इज, यहाँ पर भी रोशाक की तरह जो स्टोरी डेवलप होती है उसको एक सर्टेन मेथड के अकॉर्डिंग स्कोर किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, सो एज टू डिक्रीज द सब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरप्रिटेशन। एंड जो साइको एनालिस्ट होता है या फिर जो भी साइकोलॉजिस्ट टीएटी कर रहा है वो देखता है कि कोई ऐसा रिवीलिंग स्टेटमेंट हो या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर क्लाइंट अपनी फीलिंग्स को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को प्रोजेक्ट कर रहा है ऑन दी इमेज, उनको ढूंढा जाता है, ठीक है। सो टीएटी में कुछ इस टाइप की पिक्चर्स होती हैं। टीएटी का एक इंडियन वर्जन भी बना हुआ है, the Indian adaptation of TAT. This was developed by Mrs. Uma Chaudhary. Please note it down. This was developed by Mrs. Uma Chaudhary in the year 1960. So TAT originally develop हुआ था 1935 में by Henry Murray और इसका इंडियन वर्जन मिसेस उमा चौधरी ने बनाया है in the year 1960. इस वर्जन में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। जो 13 कार्ड्स होते हैं उसमें से 10 में मेन इमेजेस होती हैं। जो 11th कार्ड होता है वो ब्लैंक होता है। आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस, उधर भी 31 कार्ड्स थे जिसमें 30 तो पिक्चर्स वाले होते हैं, जो लास्ट वन होता है इट इज अ ब्लैंक प्लेन वाइट कार्ड। सो द क्लाइंट हैज टू जस्ट look at that white card and imagine or visualize a story and then tell it to the interpreter, ठीक है। that is the last card. So similarly यहाँ पे 13 cards होते हैं जिसमें से 10 में images होती हैं, pictures होती हैं, 11th blank होता है और जो दो बचे 12th एंड 13 वो एडिशनल कार्ड्स होते हैं। इन कार्ड्स को तब यूज़ किया जाता है जब लग रहा है कि मतलब क्लाइंट कोई चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर कोई सेक्सुअल टाइप की पिक्चर है और उसमें क्लाइंट
हर चीज़ की बात कर रहा है, बट उसी चीज़ को बिल्कुल मतलब डिनाई ही कर दिया, उसको रजिस्टर ही नहीं किया, बिल्कुल भी उसके बारे में बात ही नहीं करी. सो दीज एडिशनल कार्ड्स आर यूज टू फाइंड आउट इफ दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट और समथिंग. ठीक है. सो अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो इस टाइप के ये जो 2 एडिशनल कार्ड्स हैं ये यूज किए जाते हैं. जो टीएटी में ओरिजिनल 31 कार्ड्स होते हैं उसमें से 10 आर फॉर मेल्स, 10 आर फॉर फीमेल्स. जो नेक्स्ट 10 होते हैं दैट कैन बी यूज्ड ऑन बोथ ऑफ देम. मतलब अगर जैसे कि एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी कि जब ग्रुप में टीएटी किया जाता है, ऑल्दो इट शुड नॉट बी डन, बट ग्रुप में टीएटी कभी कभी किया जाता है. जैसे कि जब एसएसबी होता है आर्मी के लिए, तब वहाँ पर टीएटी कराया जाता है. तो क्योंकि वो ग्रुप में हो रहा होता है जिसमें लड़के लड़की दोनों बैठे होते हैं, तो वहाँ पर ये जो 10 मैंने बताए जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज हो सकते हैं, उन कार्ड्स का यूज किया जाता है. एंड द लास्ट 31st कार्ड इज अगेन ब्लैंक. So this is the this card shows the image that is used in the Indian version of TAT. The difference that you will see in the original TAT and Indian version of TAT is that यहाँ पर rather Indian culture से related pictures दिखेंगी आपको. यहाँ पर आपको जो characters दिखेंगे उनका भी skin tone and everything features will be इंडियन इन नेचर ओनली. और जैसे कि आप देखो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में गिटार या कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट की जगह यू कैन सी अ प्रॉपर इंडियन इंस्ट्रूमेंट है. मतलब हाँ, स्किन टोन नहीं, सारे ही ब्लैक एंड वाइट होते हैं. नॉर्मल जो टीएटी कार्ड, मेरे कहने का मतलब था जो उनका मेन फिगर होता है, तो अगर आप इसको देखोगे आपको देखने में लग रहा है कि ये बच्चा इंडियन है नेचर में. मेरे कहने का मतलब हाँ, features, body build, the clothes that they are wearing. So मतलब it looks like the person is Indian. ठीक है. हाँ. हाँ. हम्म. अच्छा, ओके, बिफोर मूविंग ऑन, वन थिंग दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर इज कि टीएटी का एक बच्चों का वर्जन भी होता है दैट इज फॉर चिल्ड्रन. दैट इज कॉल्ड सीएटी. सो जैसे टीएटी इज थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सीएटी इज चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट दैट इज पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन. उसके भी 2 वर्जन होते हैं, एक ह्यूमन वर्जन होता है और एक एनिमल वर्जन होता है. उसमें क्या होता है, उसमें भी इतने ही नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, सेम प्रोसेस है, सब कुछ है. लेकिन जो ह्यूमन वर्जन है उसमें रादर ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें एक बच्चा ज़्यादा क्लोजली एसोसिएट कर पाए. क्योंकि अब ये एक बड़ा इंसान या मैं एज एन एडल्ट तो इससे एसोसिएट कर सकती हूँ, लेकिन अगर एक 5-6 साल का बच्चा है तो उसके लिए एक बड़े बच्चे के साथ या बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ एसोसिएट करना मुश्किल हो जाएगा. तो थोड़े बच्चों से रिलेटेड सिचुएशंस भी होती हैं उसमें. सो दैट इज द चाइल्ड वर्जन. सिमिलरली सीएटी में एक एनिमल फिगर्स वाला होता है. वो इसीलिए होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कार्टून्स वगैरह में या प्ले काइंड ऑफ सिचुएशंस में एनिमल्स से ज़्यादा एसोसिएट कर सकते हैं रादर देन ह्यूमंस. तो हम सबको पता है कि जो बचपन में कार्टून्स देखे जाते हैं या जो कॉमिक्स पढ़ी जाती हैं जैसे चंपक वगैरह, उसमें सारे एनिमल्स की कहानी होती है और एनिमल्स को एज ह्यूमंस दिखाया जाता है. एक मॉरल होता है लास्ट में, है ना. जो बच्चे एनिमल से ज़्यादा एसोसिएट करें उनके लिए एनिमल फिगर्स का यूज होगा. Apart from Rorschach and TAT, there are some other projective techniques like sentence completion test, draw a person test, and house tree person test. So sentence completion test में सबसे ज़्यादा commonly SACS का sentence completion test होता है. It is SACKS, SACS sentence completion test. उसको शॉर्ट में SSCT भी बोलते हैं. ठीक है. तो उसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हाफ कंप्लीटेड होते हैं. जैसे कि ये एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आई विश माई मदर एंड देन अ ब्लैंक एंड द क्लाइंट इज सपोज टू कंप्लीट दैट सेंटेंस. या फिर एक और एग्जांपल दिया है, ऑलमोस्ट एवरी डे आई फील एंड देन ब्लैंक छोड़ा हुआ है, द क्लाइंट इज सपोज टू कंप्लीट दैट सेंटेंस.
Similarly, there is a draw a person test. This is also a projective technique. यहाँ पर a person is supposed to, sorry, the client is supposed to draw a person. And house tree person test is also similar to draw a person test. यहाँ पर एक house, एक tree और एक person को ड्रॉ करना होता है. दिस इज यूज फॉर चिल्ड्रन मोस्टली. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. यहाँ पर यू कैन सी कि एक बच्चे ने एक ट्री ड्रॉ करा हुआ है, पर्सन ड्रॉ करा है और हाउस ड्रॉ करा है. पर्सन में उसने काफी सारे लोग, मतलब इफ यू सी दिस इमेज आपको लगेगा कि एक फादर है, साथ में एक बच्चा है ना, बच्चा किसी चीज पे खड़ा है. सो यू कैन सी इस टाइप से हाउस ट्री पर्सन टेस्ट होता है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है. ऑल्दो सबसे ज़्यादा कॉमनली टीएटी और रोशाक ही यूज़ होते हैं. उसके बाद एसएससीटी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ज़्यादा बोलता नहीं है, बहुत शाय है, लेकिन ड्राइंग कर सकता है, तो उसके केस में सीएटी करने की जगह हाउस ट्री पर्सन या ड्रॉ पर्सन टेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा डिटेल्ड स्टोरी बनाएंगे ही नहीं. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ, द डिफरेंस, राइट. सो द डिफरेंस इज कि ड्रॉ पर्सन में सिर्फ पर्सन ड्रॉ करना होता है, और हाउस ट्री पर्सन टेस्ट में आप एक हाउस ड्रॉ करते हो, एक ट्री करते हो और एक पर्सन करते हो, तो ज़्यादा एसोसिएशन हो सकता है. ठीक है. सो अगर आप पर्सन के साथ साथ हाउस भी ड्रॉ कर रहे हो, अगर एक बच्चा बहुत ही डिसफिगर्ड सा हाउस ड्रॉ कर रहा है या आपको बहुत डार्क सा लग रहा है हाउस, तो आप समझ सकते हो कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो इस तरह प्रोटेक्ट हो रहा है. ठीक है. देन जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में, वो यूजुअली रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की होती हैं. दिस इज बिकॉज दीज टेस्ट आर नॉट ऑब्जेक्टिव इन नेचर, दे आर सब्जेक्टिव. एंड बिकॉज दे आर सब्जेक्टिव, अ लॉट ऑफ बायस कैन बी देयर. आप रिपीट करोगे, हर बार एक अलग स्टोरी बन सकती है और हर बार इंटरप्रिटेशन सिमिलर स्टोरी का अलग अलग हो सकता है. सो एक ही स्टोरी को जैसे मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ और जैसे कोई और साइकोलॉजिस्ट इंटरप्रेट कर रहा है, देयर कैन बी डिफरेंसेस इन दैट. सो दैट इज वाई इनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है. Reliability was defined as the tendency of a test to give the same score every time it is administered to the same person or group of people. So एक ही सेम टाइप के टेस्ट को जब आज आपने एक पर्सन पे एडमिनिस्टर करा और कल किया या कुछ टाइम बाद किया, हर बार सेम स्कोर आए, दैट इज रिलायबिलिटी. सो रिपीटेशन पर सिमिलर काइंड ऑफ स्कोर आए, दैट इज रिलायबिलिटी. एंड वैलिडिटी इज द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर. यानी कि जिस चीज़ के लिए एक्चुअली मेजर करने के लिए एक टेस्ट को बनाया गया है, वो टेस्ट एक्चुअली में उसी चीज़ को मेजर कर रहा है या नहीं, वो हमारी वैलिडिटी होती है. ऐसे प्रोजेक्टिव टेस्ट जिनमें कोई स्टैंडर्ड ग्रेडिंग स्केल नहीं होता है, उनकी बहुत ही ज़्यादा लो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होती है. ये एक रीज़न है कि टीएटी और अशाक सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, बिकॉज इनमें एक बहुत ही मतलब ऑल्दो दे आर सब्जेक्टिव, बट इनकी बहुत ज़्यादा एक स्टैंडर्ड ग्रेडिंग स्केल है. सो देयर आर सर्टेन थीम्स जो हर कार्ड में देखी जाती हैं और उन थीम्स के अकॉर्डिंग स्कोर किया जाता है. जिसकी वजह से एक प्री डिटरमाइन, मतलब कैटेगोरिकल फॉर्म में स्कोरिंग हो जाती है उनकी. फिर a person's answer to Rorschach, for example, might be quite different from one day to the next, depending on the person's mood and other factors. तो एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम कैसे स्कोर कर रहे हैं, इट्स अबाउट दिस ऑल्सो कि एक पर्सन ने का कैसा मूड है, मतलब जो क्लाइंट है जिस पर आप एडमिनिस्टर कर रहे हो उसका कैसा मूड है या उसका कैसा एनवायरनमेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है. सो अगर एक बच्चा है छोटा, उसको आपने टीएटी या रोशाक पर स्टोरीज बनाने को दिया या उसको एक्सप्लेन करने को दिया और उसने कल कोई बहुत स्कैरी मूवी देखी है, तो उसकी आज की स्टोरीज थोड़ी उससे रिलेटेड हो सकती हैं. और अगर उसने कल कोई बहुत ज़्यादा बच्चों, मतलब अच्छी हैप्पी एंडिंग वाली मूवी देखी है, कार्टून मूवी देखी है, तो हो सकता है कि वो उससे रिलेटेड स्टोरी बनाए, है ना. सो दीज आर वेरी सब्जेक्टिव. देन वी हैव बिहेवियरल असेसमेंट्स.
एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ओनली कि बिहेवियरल असेसमेंट इसीलिए होते हैं पर्सनालिटी टेस्टिंग में, क्योंकि कुछ स्पेशली जो बिहेवियरिस्ट थे उनका ये मानना था कि पर्सनालिटी इज जस्ट अ सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज, ठीक है, दैट अ पर्सन एग्जिबिट्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन। सो उसके लिए बिहेवियरल असेसमेंट्स यूज होते हैं। Because behaviorists assume that personality is merely habitual learned responses to stimuli in the environment, the preferred method for a behaviorist would be to watch that behavior unfold in the real world. तो क्योंकि behaviorist का ये मानना है कि personality learned responses का एक habitual form है, इसीलिए बिहेवियरिस्ट ये प्रेफर करते हैं कि हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को अगर समझना चाहते हैं तो रियल लाइफ सिचुएशंस में उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाए। इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी यूज हो सकता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट को ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, उसकी एवरीडे सिचुएशंस में उनको ऑब्जर्व करता है, जैसे कि उनकी होम सेटिंग्स हो गई, उनका स्कूल हो गया, उनका वर्क प्लेस हो गया, ऐसे जगह पर उनको ऑब्जर्व करना। इसके सिवा अपार्ट फ्रॉम जस्ट ऑब्जर्वेशन रेटिंग स्केल्स भी यूज हो सकते हैं या फ्रीक्वेंसी काउंट्स यूज हो सकते हैं। रेटिंग स्केल में क्या होता है, एक सर्टेन लिस्ट दी होती है बिहेवियर्स की, जिसमें एक न्यूमेरिकल रेटिंग पर क्लाइंट या असेसर खुद से रेट करता है बिहेवियर को। तो अगर एक बिहेवियर लिखा हुआ है स्टीलिंग, तो उस स्टीलिंग को रेट करना है, ठीक है। या फिर हॉस्टिलिटी, तो हॉस्टिलिटी कितनी इंटेंस है उसको रेट करना है उस स्केल पर। अगर मान लो 1 to 7 का रेटिंग स्केल है और हर बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी है एक इंसान में, तो 7 की रेटिंग दी जाएगी। अगर मीडियम लेवल की हॉस्टिलिटी है तो 4 या 5 रेटिंग दे दी जाएगी। अगर हॉस्टिलिटी बहुत कम है तो 0 या 1 की रेटिंग दे दी जाएगी। ऐसे रेटिंग स्केल्स में बेसिकली किसी भी बिहेवियर की इंटेंसिटी को रेट किया जाता है। सिमिलरली देयर आर ऑल्सो फ्रीक्वेंसी काउंट्स, जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स एक बिहेवियर जितनी बार हो रहा है विद इन अ गिवन टाइम लिमिट, उसको काउंट मतलब उसका काउंट लिखा जाता है। सो अगर मान लो स्टीलिंग है या लाइंग है, तो बोल दिया जाता है कि एक दिन में कितनी बार झूठ बोला है उसका फ्रीक्वेंसी काउंट लिखो, या 10 दिन में कितनी बार चोरी करी है उसका फ्रीक्वेंसी काउंट लिखना है, ठीक है। ये इस टाइप का होता है फ्रीक्वेंसी डेटा कलेक्शन फॉर्म। ऊपर नेम लिखते हो, फिर आप टारगेट बिहेवियर लिखते हो कि क्या है। मान लो हिटिंग अदर पीपल है, तो टारगेट बिहेवियर में आपने लिखा हिटिंग अदर पीपल, किस डेट पर कितनी बार हुआ वो लिखोगे। और अगर रिलेटेड कोई कमेंट्स हैं समथिंग दैट इज वेरी नोटिसेबल उस पर्टिकुलर बिहेवियर में, तो वो एडिशनल कमेंट्स में ऐड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सनालिटी की कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग्स भी होती हैं। Objective tests represent the most familiar and widely used approach to assessing personality. Objective tests involve administering a standard set of items, each of which is to be answered using a limited set of response options. ठीक है, सो इसमें एक स्टैंडर्ड सेट होता है जिसमें क्वेश्चंस या आइटम्स दिए होते हैं और उनको आंसर करना होता है, लेकिन ये जो आंसर होगा ये एक लिमिटेड सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज में ही होगा। सो आप सब्जेक्टिव आंसर नहीं दे सकते, आप या तो ट्रू और फॉल्स में कर सकते हो, या स्ट्रांगली अग्री से स्ट्रांगली डिसअग्री तक की रेंज होगी उसमें रेट कर सकते हो, ठीक है। Responses to these items then are scored in a standardized predetermined way. तो फिर ये जो responses होते हैं इनको एक standardized predetermined way में स्कोर किया जाता है। जैसे कि अगर सेल्फ रेटिंग्स हैं टॉकेटिवनेस, असर्टिवनेस, सोशेबिलिटी, एडवेंचरनेस एंड एनर्जी, इन सबको रेट करने के लिए, तो ये एक सम अप करके एक्सट्रोवर्जन की पर्सनालिटी ट्रेट का स्कोर दे देंगे।
Then there are personality inventories. Trait theorists are typically more interested in personality descriptions. तो जो trait theories दी गई हैं personality की, उसमें personality descriptions को ज़्यादा clearly दिया गया है. They tend to use an assessment known as personality inventory, a questionnaire that has a standard list of questions. तो personality inventory एक questionnaire type का होता है जिसमें standard questions होते हैं. दे दीजिए प्लीज, मुंह सूख गया है, छाछ का पानी. इसमें हर, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लिस्ट होती है क्वेश्चन की, तो हर क्लाइंट को सेम लिस्ट ही मिलती है. और क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसीलिए ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं नेचर में और ज़्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू प्रोजेक्टिव टेस्ट. इसमें काफ़ी सारे पर्सनालिटी टेस्ट यूज़ होते हैं, जिनमें से एक है रेमंड कटेल का 16PF. 16PF हमने डिस्कस किया है इस मॉड्यूल के स्टार्टिंग में, सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. देन नियो PI यूज़ होता है कॉस्टा और मैक्रे का. 2000 में डेवलप हुआ था ये, सॉरी रिवाइज हुआ था ये. नियो PI R है अब इसका रिवाइज्ड वर्जन. किया था यार, नियो PI भी डिस्कस किया है मैंने. नियो PI भी पूरा डिस्कस. हाँ जी, उस ये सारा कुछ मैंने वहां पर. क्या बोल रहे हो स्मृति? यस यस यस. इसके बाद देयर इज MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर. MBTI. This inventory is based on the ideas of Carl Jung and looks at 4 personality dimensions. ठीक है, सो पर्सनालिटी के 4 डायमेंशन दिए गए हैं जिसके बेसिस पर MBTI को यूज़ किया जाता है या किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को असेस किया जाता है. कार्ल यूंग के आइडिया के बेसिस पर ये बना था. इसमें जो 4 डायमेंशन है उसमें पहला है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट. देन देयर इज थिंकर्स एंड फीलर्स. थिंकर्स और फीलर्स का मतलब है, थिंकर्स वो होते हैं जो लॉजिकल बेसिस पर अपने डिसीजंस लेते हैं, हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे और उसके बेसिस पर डिसीजंस लेंगे. और फीलर्स वो होते हैं जो अपने पर्सनल वैल्यूज़, अपने इंट्यूशन, नॉट इंट्यूशन, अपने हाँ उनके एक्शन से किस इंसान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बेसिस पर ये लोग डिसीजंस लेते हैं. दे आर वेरी सेंसिटिव एंड कोऑपरेटिव इन नेचर. Thinkers, they rather objectively weigh the pros and cons. Then the third dimension is sensors and intuitives. Sensors are realistic people who like to focus on the facts and details. जो लोग फैक्ट्स और डिटेल्स पे फोकस करते हैं, दे आर सेंसर्स एंड दे अप्लाई कॉमन सेंस एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस टू कम अप विथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इन द टू द प्रॉब्लम्स. यानी कि वो लोग जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपने कॉमन सेंस को यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो सेंसर्स होते हैं. इंट्यूटिव्स वो होते हैं हु प्रेफर टू फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज एंड द बिग पिक्चर. ठीक है, ये लोग क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक चीज को सॉल्व करने की उस पर होते हैं. सो दीज पीपल आर वेरी क्रिएटिव इन नेचर. दे टेंड टू सी द बिग पिक्चर and they also have out of box thinking. They can easily see patterns. They value innovation, नए नए ideas को भी value करते हैं and they see creative solution to problems. These are intuitives. यहाँ पर confuse मत हो जाना, intuitives को I से नहीं N से डिनोट किया जाता है.
देन द लास्ट डायमेंशन इज जजर्स एंड परसीवर्स. जजर्स वो होते हैं जो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और प्रिपेयर्ड रहते हैं हर चीज़ के लिए. दे मेक प्लान्स एंड स्टिक टू दोज प्लान्स एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल फॉलोइंग रूल्स. सो दे हैव सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड दे फॉलो दैट. अगर वो रूल से बहुत ज़्यादा चेंज होता है तो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट. दे टेंड टू स्टिक ऑन विद देयर प्लान्स एंड रूल्स. देन इसका ऑपोजिट होता है परसीवर्स. दे प्रिफर टू कीप देयर ऑप्शंस ओपन, सो दे आर मोर फ्लेक्सिबल टू changes. they like they like to be able to act. हाँ, they are very spontaneous in nature. तो हर चीज़ पहले से प्लान करके नहीं चलेंगे. सडनली एक प्लान बन जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. पहले से हर चीज़ सेट करके नहीं रखते. एंड दे आर लाइकली टू बी फ्लेक्सिबल विद मेकिंग प्लान्स. ठीक है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं. अब इन चारों के बेसिस पर 16 टाइप की पर्सनालिटीज बन सकती हैं. 4x4. हाउ 4x4? आई टेल यू. 4 चीजें दिख रही है ना, तो 4 ग्रुप्स बन सकते हैं सबके. ठीक है, तो टोटल 16 काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज हो सकती हैं. जैसे कि अगर एक्सट्रोवर्ट्स इंट्रोवर्ट्स में से ई ले लूं, सेंसर्स इंट्यूटिव में से एस ले लूं, थिंकर्स फीलर्स में से टी ले लूं और जजर्स परसीवर्स में से जे ले लूं, तो हो जाएगा ESTJ. ऐसे ही हो सकता है ENTJ, फिर हो सकता है ESFP, ISTP, INTP, ISFJ. इस टाइप से डिफरेंट सेट्स बन जाते हैं और पर्सनालिटी टाइप्स बनती हैं. सो बेस्ड ऑन दिस देयर कैन बी 16 डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स. ओके, क्लियर? Another one that we have is, this is also commonly used, it is called as MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory. This is a psychological test that assesses personality traits and psychopathology. यानी कि ये personality traits के साथ psychopathology को भी assess करता है. ठीक है, ये ओरिजिनली हैथवे एंड मैकिनले ने डेवलप किया था. Stark R. Hathaway and J.C. McKinley. This was developed in the University of Minnesota and it was first published by University of Minnesota only in the year 1943. Just a second, please. ओके, सो MMPI के ओरिजिनल MMPI के और कुछ वर्जन्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है MMPI 2. ये 1989 में डेवलप हुआ था. when the MMPI became the MMP2 as a result of a re-standardization project to develop a new set of normative data representing current population characteristics. यानी कि 1989 में इसका सेकेंड वर्जन बना था जिसका नाम रखा गया MMPI 2. और ये इसलिए बना था क्योंकि एक मतलब वो अपने टेस्ट को फिर से स्टैंडर्डाइज करना चाहते थे बेस्ड ऑन न्यू पॉपुलेशन एंड न्यू नॉर्मेटिव डेटा. न्यू नॉर्मेटिव डेटा यानी कि नए मीन्स, नए एवरेज, है ना. नॉर्म्स का मतलब यही होता है, नए एज नॉर्म्स, नए पॉपुलेशन नॉर्म्स के बेसिस पर इसको नया डेवलप किया गया था. द री-स्टैंडर्डाइजेशन इंक्रीज द साइज ऑफ नॉर्मेटिव डेटाबेस to include a wide range of clinical and non-clinical samples. तो ये जो री-स्टैंडर्डाइजेशन किया गया था, इसमें सैम्पल साइज को इंक्रीज कर दिया गया था और हर टाइप का सैंपल लिया गया था, क्लिनिकल भी और नॉन क्लिनिकल भी. क्लिनिकल एज इन जिनको कोई एक्चुअली में साइकोपैथोलॉजी प्रेजेंट थी और जिनको नहीं थी उनको भी. ये वाला जो वर्जन था, दिस वाज एप्रोप्रिएट फॉर अडल्ट्स ऑफ 18 एंड अबव 18. करंटली जो MMPI 2 यूज होता है उसमें 567 आइटम्स हैं एंड इट यूजुअली टेक्स बिटवीन 1 to 2 hours टू कंप्लीट. एक दूसरा वर्जन है MMPI A.
क्योंकि MMPI 2 सिर्फ 18 एंड अबव के लिए है, तो ये अडोलेसेंट्स के लिए डेवलप हुआ था, इसीलिए MMPI A बोलते हैं, यानी कि मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी फॉर अडोलेसेंट्स, MMPI A। ये 14 to 18 ईयर्स की एज के लोगों के लिए यूज हो सकता है, और ये 1992 में रिलीज किया गया था। This was developed to improve the measurement of personality, behavior difficulties and psychopathology among adolescents. So adolescents से related behavioral problems, उनकी personality types और उनके psychopathology से related है ये। It addressed limitation of using the original MMPI among adolescent populations, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ adolescent populations तक limited है। इसमें 478 items हैं। Then there is another version. This is known as MMPI-2RF, यानी कि MMPI-2 restructured form. Restructured form का short form कर दिया RF, so it becomes MMPI-2RF. ये 2008 में publish हुआ था। इसमें restructured clinical scales हैं जो कि 2003 में develop किए गए थे। Restructured clinical scales as in क्लिनिकल पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए कुछ स्केल्स बनाए गए थे, और इसमें वो स्केल्स डाले गए थे। वो क्या स्केल्स हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे दिए हुए हैं। The MMPI-2RF scales are designed to more precisely measure distinct symptom constellations or disorders. यानी कि MMPI-2RF में जो स्केल्स ऐड करे गए हैं, ये स्पेसिफिकली इसलिए डिजाइन करे गए हैं कि हम अलग अलग सिम्टम्स को अच्छे से प्रिसाइजली मेजर कर सके और उनका कॉन्स्टलेशन बना सके। कॉन्स्टलेशन एज इन कुछ सिम्टम्स मिलकर के एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर बनाते हैं, ये सब हमें पता है। सो देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जो मिलकर के डिप्रेशन बनाते हैं, देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जो मिलकर के एंग्जाइटी बनाते हैं, देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जो मिलकर के OCD बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सिम्टम्स के कॉन्स्टलेशन को प्रिसाइजली डिस्क्राइब किया गया था और उसके बेसिस पे डिसऑर्डर्स के बारे में बात करी गई थी इन स्केल्स की हेल्प से। ये ऐड जब किए गए MMPI-2 में, तो इट बिकेम MMPI-2RF इन द ईयर 2008। MMPI-2 जो है, दिस इज बाय फार द मोस्ट कॉमन पर्सनालिटी इन्वेंटरी, यानी कि MMPI के जितने भी वर्जन्स हैं उनमें से MMPI-2 सबसे ज़्यादा वाइडली यूज हो सकता है, जो कि विथ स्पेसिफिकली टेस्ट, क्योंकि ये पर्सनालिटी के अबनॉर्मल पार्ट को, अबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करता है। दिस वॉज डेवलप्ड बाय हैथवे एंड मैकिनली। This questionnaire consists of 567 statements such as I am often very tense, or I believe I am being plotted against. So Smriti, can you tell me, I believe I am being plotted against, what does this show? I believe I am plotted against, what does this show? नहीं, साइकोपैथोलॉजी के हिसाब से पूछ रही हूँ। थोड़ा बहुत साइकोपैथोलॉजी पढ़ा है? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब साइकोपैथोलॉजी पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज वैसे, यस, अब नॉर्मल साइकोलॉजी में, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें ट्रू, फॉल्स और कैन नॉट से के टर्म्स में आंसर करना होता है। MMPI-2 में या MMPI में 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं और 8 वैलिडिटी स्केल्स हैं, और साथ में और बहुत सारे सब स्केल्स हैं, लेकिन मेन हमारे लिए स्टडी करने के लिए जो 8 वैलिडिटी सब स्केल्स हैं और 8 वैलिडिटी स्केल हैं और 10 क्लिनिकल सब नहीं 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हैं क्लिनिकल स्केल्स। द फर्स्ट वन इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। दिस इज मेनली रिलेटेड टू बॉडीली सिम्टम्स, यानी कि जो सोमैटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बॉडी से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, उस पर फोकस करता है, और इसमें टोटल 32 आइटम्स होते हैं। द सेकेंड, जिसका हाइपोकॉन्ड्रियासिस का एब्रीविएशन इज HS। देन सेकेंड इज डिप्रेशन, जिसका एब्रीविएशन इज D। इसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स की बात करी गई है, और नंबर ऑफ आइटम्स इज 57।
देन द थर्ड इज हिस्टीरिया, HY है, इट इज अबाउट अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स इन वल्नरेबिलिटीज एंड इसमें नंबर ऑफ आइटम्स इज 60. देन फोर्थ इज PD, साइकोपैथिक डेविएट, it is about conflict, struggle, anger, respect, and the respect for society's rules. It has a total of 50 items. The fifth is MF, masculinity, femininity, यानी कि जो stereotypical masculine और feminine behavior होते हैं, जो typical male और female behaviors होते हैं, उसमें कितना interest है या उस type के behaviors कितने present हैं. इसमें total 56 items हैं. The sixth is paranoia, PA होता है इसका अब्रीविएशन. इसमें कितना ट्रस्ट कर सकते हो आप दूसरे पर, लेवल ऑफ सस्पिशियसनेस कितना है, कितने सेंसिटिव हो आप टुवर्ड्स अदर पीपल, उसके बारे में बात करी गई है. एंड इसमें द नंबर ऑफ आइटम्स इज 40. देन द सेवेंथ इज PT, साइकास्थीनिया. इट इज अबाउट वरी, एंजाइटी, टेंशन, डाउट्स एंड ऑब्सेसिवनेस. इसमें द नंबर ऑफ आइटम्स आर 48. देन द एट्थ वन इज स्किज़ोफ्रेनिया. जस्ट अ सेकेंड, सॉरी. Then the next is schizophrenia, SC. This is about odd thinking and social alienation, and the number of items in this one is 78. Then the ninth is MA, hypomania. That is the level of how much excitability, how much arousal does a person feels, and the number of items is 46. And the last, इसको 9 की जगह देखना, 9 के बाद 10 नहीं 0 से डिनोट करते हैं. एब्रीविएशन इज SI एंड इट इज अबाउट सोशल इंट्रोवर्जन, यानी कि एक पर्सन इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है. इट इज अबाउट द ओरिएंटेशन in society, and the number of items in this is 69. ये है वैलिडिटी स्केल्स MMPI-2 के. द फर्स्ट इज L स्केल, यानी कि द लाई स्केल. इसमें ये देखा जाता है कि एक इंसान कितना झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को कितना ज़्यादा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है. The second is CNS scale, the cannot say scale, यानी कि अगर cannot say पे 30 से ज़्यादा बार इंसान ने टिक किया है, ठीक है, तो फिर हम टेस्ट को इनवैलिड मान देते हैं. Then the F scale is there, infrequency scale, यानी कि इंडिविजुअल्स आंसर्स मतलब इंडिविजुअल के जो आंसर्स हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, यानी कि कहीं पर तो वो बोल रहा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और कहीं पर उसके आंसर से पता चल रहा है कि वो कहना चाह रहा है मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ. सो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है. ये टेस्ट के फर्स्ट हाफ में ही होता है, ठीक है. देन देयर इज बैक F, यानी कि FB स्केल, कंसिस्ट ऑफ 40 आइटम्स दैट आर lesser than 10% of the norm supports indicate poor attention. अच्छा ठीक है, this is present in the second half of the test. इसमें ये देखा जाता है कि कितना रैंडमली, कभी कभी होता है ना कि हम मूड में नहीं होते हैं तो हम रैंडमली कुछ भी टिक 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 करते जाते हैं, तो ये स्केल हमारी हेल्प कराता है ये देखने में कि कितना रैंडमली क्वेश्चंस को आंसर किया जा रहा है. देन देयर इज K स्केल, डिफेंसिवनेस. दिस इज अबाउट कि कितने डिनायल में चल रहा है इंसान, डिनाई कितना कर रहा है, या डिफेंस मैकेनिज्म्स बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर रहा है तो, एंड ट्राइंग टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाना. देन देयर इज F-K स्केल. इसमें ये देखा जाता है कि रिस्पॉन्सेज में कितनी ऑनेस्टी है, कितने ऑनेस्टली आंसर किया गया है चीज़ों को. देन देयर इज ट्रिन स्केल. ट्रिन इज ट्रू रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंसी, यानी कि हाँ इंडिविजुअल्स ने कितना इनकंसिस्टेंटली आंसर किया है क्वेश्चंस को. तो इसमें टोटल 23 पेयर्स होते हैं क्वेश्चंस के जो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं. सो 23 ऐसे क्वेश्चंस हैं, पेयर्स हैं ऐसे, यानी कि टोटल 46 क्वेश्चंस हैं जो पेयर्स में हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो अगर वो दोनों एक कंसिस्टेंट आंसर दे रहे हैं तो ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी दिखती है इसमें तो द ट्रिन स्केल शोज दैट
द पर्सन इज लाइंग और फेकिंग या फिर रैंडमली फिल कर रहा है. एंड देन देयर इज व्रिन स्केल. व्रिन इज वेरिएबल रिस्पॉन्स inconsistency. This is an alternate scale that helps to detect inconsistent answers for similar or opposite question pairs. Now, now we will start with the Indian concept of personality. यानी कि जो हमारी indigenous theories हैं personality, indigenous theories हैं वो personality को कैसे explain करती हैं. The insights in understanding human nature as per Indian thoughts is derived from various Indian philosophical traditions like Vedanta, Samkhya, Yoga, Jainism, Buddhism, and other researchers and scholars in India have attempted to explain these concepts. यानी कि ये जो मेन चीज़ें हैं जैसे वेदांत हो गए हमारे, सांख्य, योग, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन सब में पर्सनालिटी के बारे में थोड़ी बहुत बातें करी गई हैं और आप यू विल फाइंड कि सब चीज़ें थोड़ी बहुत आगे पीछे करके एक ही बात कहने की कोशिश करती हैं. In Indian psychological thought, the term personality has not been used in strict sense. यानी कि टिपिकल पर्सनालिटी वर्ड को यूज नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वो बात पर्सनालिटी के ही बारे में कर रहे हैं. यू विल सी कि पर्सनालिटी की जगह एक स्वभाव के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है और ये जो स्वभाव का कॉन्सेप्ट है ये पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट्स को खुद ही कवर कर लेता है. स्वभाव होता क्या है? हमारा खुद का नेचर. ये दो वर्ड से बना है, स्व और भाव. स्व का मतलब है हमारा खुद का. हाँ, सो स्व का मतलब है हमारा खुद का, समथिंग दैट बिलोंग्स टू अस, टू वन सेल्फ. एंड भाव का मतलब हमारा स्टेट, हमारा नेचर. सो स्वभाव हो जाता है हमारा खुद का नेचर. one's own nature is स्वभाव. इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन साइकोलॉजी में, त्रिगुणा का. ठीक है. The concept of triguna has been utilized to explain the concept of personality in modern era as well. यानी कि त्रिगुणा के कॉन्सेप्ट को आज के मॉडर्न जमाने में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है पर्सनालिटी को. Indian researchers have also deliberated on this concept of triguna in their writings. The development of consciousness is apparently rooted in this concept of triguna. These are known as sattva, called as stability, rajas called as activation, and tamas called as inertia. यानी कि ये जो त्रिगुणा है, त्रि मतलब तीन और गुण मतलब 20. सो तीन गुणों की बात करी गई है, सत्व गुण, राजस गुण और तमस गुण. ठीक है. इन तीन गुणों के मेल से, मिक्सचर से पर्सनालिटी फॉर्म होती है. So you can see that this is very much related to the four humors जिसकी हिपोक्रेट्स ने बात करी थी. ठीक है. येलो बाइल, ब्लैक बाइल वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी की तरह है ये काफी. सो सत्वा को सत्व गुणा भी बोलते हैं, रजस को रजो गुणा भी बोलते हैं और तमस को तमो गुणा भी बोला जाता है. सत्व गुणा जो होता है वो स्पिरिचुअल क्वालिटी की बात करता है, यानी कि अंदर स्पिरिचुअलिटी, किसी के अंदर जब स्पिरिचुअलिटी होती है तो यानी कि उनका सत्व गुणा काफी हाई है, उनमें एक लाइट होती है और प्योरिटी होती है, ट्रुथ होता है, डिजायर नहीं होती किसी भी चीज की. ठीक है. अटैचमेंट नहीं होता किसी चीज से, विजडम होता है, ऐसे लोग बहुत वाइज माने जाते हैं. दे आर वेरी पीस, दे हैव अ पीसफुल लाइफ एंड दे आर वेरी काम इन नेचर. फिर आता है रजोगुणा. वर्ल्डली
दीज पीपल आर वर्ल्डली, मतलब दे आर वेरी मटीरियलिस्टिक इन नेचर, काफी दुनिया से जुड़े रहते हैं. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पैशन एंड डिजायर. ठीक है, तो इनके डिजायर, जैसे सत्वा में डिजायर्स हैं ही नहीं, छोड़ दिया है सब कुछ, मतलब जैसे बाबा लोग होते हैं, ठीक है, इन लोगों में बहुत हाई पैशन और डिजायर होती है, कुछ करने की इच्छा होती है. दे आर वेरी एम्बिशियस इन नेचर, और एक्शन को फॉलो करते हैं, और इसीलिए ये लोग काफी रेस्टलेस भी होते हैं, क्योंकि डिजायर ज्यादा है, एम्बिशंस बहुत हाई हैं, इसीलिए रेस्टलेस भी होते हैं. उसके बाद आता है तमस. तमस यानी कि तमोगुणा. जो इविल और डार्क लोग होते हैं, जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को मारते हैं, उस टाइप के लोग तमोगुणा में आते हैं. दे हैव इनर्शिया एंड इंडिफरेंस. इनको मतलब दे आर वेरी इनसेंसिटिव एंड मतलब कोई इम्पैथी नहीं होती, इमोशनलेस काइंड ऑफ पीपल. दे आर वेरी इग्नोरेंट टू एवरीवन एंड वेरी लेजी इन नेचर. इसके सिवा आयुर्वेद में भी कुछ पर्सनालिटी टाइप्स की बात करी गई है. आयुर्वेद में द इंडियन मेडिकल विजडम, ओके, आयुर्वेद को इंडियन मेडिकल विजडम भी बोलते हैं, ये पर्सनालिटी को प्रकृति वर्ड की हेल्प से डिस्क्राइब करता है. ये बोलते हैं कि प्रकृति हमारी पर्सनालिटी होती है. हम लोगों की, हर किसी की एक अलग प्रकृति होती है, यानी कि नेचर होता है, नेचुरल फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी कि यहाँ लिखा है इट मीन्स नेचर और नेचुरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल. सो नेचुरली इंसान किन कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, क्या उसके नेचर्स और हाव भाव हैं, वो सब हमारी प्रकृति होती है. सो दैट इज आवर पर्सनालिटी. इट रिफर्स टू वंस ओन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक. सो इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, दैट एवरी वन इज यूनिक एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन्स फिजियोलॉजी. यानी कि हमारी बॉडी जो होती है, हमारी फिजियोलॉजी होती है, उससे इट इज कंट्रोल्ड. This implies explicitly that whatever man is made up of, the world too is made up of those same things or elements, but of different combinations and degrees. तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारी दुनिया जिन 5 एलिमेंट से बनी है, हम लोग भी उन्हीं 5 एलिमेंट से बने होते हैं. आयुर्वेद में इन 5 एलिमेंट्स को महाभूता बोला जाता है. ठीक है, ये होते हैं आकाश, वायु, तेजस, जल और पृथ्वी. आकाश एज इन ईथर, द स्पेस, वायु एज इन एयर, तेजस एज इन तेजस एज इन फायर, जल इज वाटर एंड पृथ्वी इज अर्थ, द सॉइल. ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड इन्हीं 5 एलिमेंट से बना है, और हम ह्यूमंस भी इन्हीं 5 एलिमेंट के मिक्सचर से बने होते हैं, इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, लेकिन सब में एक अलग कॉम्बिनेशन होता है इन सब का, और अलग डिग्री में, अलग इंटेंसिटी में ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. एंड दैट इज वाई एवरी वन इज डिफरेंट इन नेचर. होते यही 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अलग अलग क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, these 5 elements combine with each other to form 3 humors. ये 5 एलिमेंट अलग अलग क्वांटिटीज में कंबाइन होकर के 3 ह्यूमर्स बना सकते हैं. नाउ दीज ह्यूमर्स आर एग्जैक्ट द सेम एज हिपोक्रेट्स के 4 ह्यूमर्स. ठीक है, ये होते हैं वात, पित्त और कफ. इनको त्रिदोष भी बोला जाता है. तीनों को साथ में रख दो तो इनको त्रिदोषा भी बोला जाता है. इंग्लिश में त्रिदोषा, हिंदी में त्रिदोष. एंड ये हमारी आयुर्वेदिक फिलॉसफी का मेन कॉर्नरस्टोन है. ठीक है, इफ चेंजेस, तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जो वात, पित्त और कफ होते हैं, ये हमारी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं कि हमारी कैसी पर्सनालिटी होगी. ईथर और एयर, यानी कि स्पेस और एयर को मिला करके वात बनता है. फायर और वाटर हाई होते हैं तो पित्त होता है, और वाटर और अर्थ होता है तो कफ. ठीक है,
अगर हमारी बॉडी में इनके चेंजेस हो जाते हैं तो एक इम्बैलेंस वाली फीलिंग आ जाती है, होम्योस्टैसिस बिगड़ जाता है और अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। तो वो ये बोलते हैं कि इंसान का एक मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म हो जाता है, द सर्वाइवल ऑफ विच विल डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट टू इट्स एनवायरमेंट। और वो इंसान सर्वाइव कर पाएगा फिर या नहीं, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो कितना अडेप्ट कर सकता है इन्वायरमेंट के साथ। आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हेविली सांख्यन मतलब जो सांख्य फिलॉसफी है उसमें से लिए गए हैं। वात बॉडी टाइप जो होता है, these qualities reflect the elements of space and air, यानी कि स्पेस और एयर के एलिमेंट्स को ये रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे लोगों का जिनकी वात बॉडी, मतलब जिनकी बॉडी में वात ज़्यादा होता है या वात डोमिनेंट होता है, इनका थिन बॉडी फ्रेम होता है, पतले लंबे से लोग होते हैं ये लोग। इनकी स्किन रादर ड्राई होती है, हेयर भी ड्राई होते हैं, एंड दे आर वेरी क्विक, मतलब बहुत फास्ट और एक्टिव होते हैं ये लोग। फिर होता है पित्त बॉडी टाइप, देयर क्वालिटीज रिफ्लेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ फायर एंड वाटर, यानी कि तेजस और जल की क्वालिटीज होती हैं इनमें। दे हैव अ मीडियम बॉडी फ्रेम, मीडियम बॉडी फ्रेम होता है मतलब ना ज्यादा पतले ना ज्यादा मोटे। दे हैव वेरी डेलिकेट स्किन एंड दे हैव अ गुड एपिटाइट। Then there is cuff body type. They have qualities reflecting the elements of earth and water. ठीक है, पृथ्वी और जल के एलिमेंट्स होते हैं इसमें। They have a large body frame, मतलब ये लोग लंबे तगड़े टाइप के होते हैं। Skin is thick and smooth, इनकी स्किन स्मूथ होती है और थिक होती है। एंड दे आर स्लो इन फिजिकल एक्टिविटीज, उतने ज्यादा एक्टिव और क्विक नहीं होते हैं। So if you see, these are very similar to Sheldon का body types. अब वात पित्त और कफ के अकॉर्डिंग बैलेंस और इम्बैलेंस अगर हो जाता है तो क्या रिलेटेड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस दिख सकते हैं, बॉडी में चेंजेस दिख सकते हैं, उनको डिस्कस किया गया है। कफ इज अबाउट एनर्जी ऑफ ल्यूब्रिकेशन एंड स्ट्रक्चर। जो मेन एसोसिएटेड सीजन है इससे, दैट इज लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग, फाउंड इन नेचर, मतलब मून और रेन से रिलेटेड है। अगर बैलेंस होता है ये, मतलब बॉडी में बैलेंस फॉर्म में है, तो माइंड हमारा लव, मतलब माइंड में हमारे मन में हमारे प्यार होता है, नर्चरिंग होती है, कंपैशन होता है टुवर्ड्स अदर पीपल और बहुत पेशेंस होता है। बॉडी हमारी स्ट्रेंथन हो जाती है, नरिशमेंट रहती है, इट ल्यूब्रिकेट्स इटसेल्फ, इट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ, फैट और फ्लूइड्स बहुत मतलब बैलेंस्ड रहते हैं और रिप्रोडक्शन हेल्दी होता है। अगर इम्बैलेंसेस हो जाएं कफ के तो माइंड में ग्रीड आ जाती है, लालच आ जाता है, जलन एनवी आ जाती है, ग्रजेस इंसान होल्ड करने लगता है और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और डिपेंडेंसी हो जाती है दूसरों पर। बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कंजेशन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, एलर्जीज हो सकती हैं, लेथार्जी यानी कि थकान की फीलिंग हो जाती है और साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर आता है पित्त। दिस इज रिलेटेड टू सन एंड हीट और इससे रिलेटेड सीजन इज लेट स्प्रिंग एंड समर। नहीं, सीजन वाइज एज इन रिलेटेड सीजन्स हैं इसके। क्यों? क्योंकि इफ यू सी दैट कफ किस चीज से बना है? पृथ्वी एंड जल से, है ना। सो उससे सीजन्स हैं, दीज आर जस्ट द रिलेटेड सीजन्स। आप ऐसे समझ सकते हो कि यूजुअली जैसे पित्त में लेट स्प्रिंग और समर दिया है, तो समर और लेट स्प्रिंग के टाइम पर पित्त कंपैरेटिवली हाई हो सकता है बहुत। हाँ, ठीक है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू, देखो अब जैसे पित्त है, पित्त दो चीजों से बना था, आई थिंक तेजस एंड जल, ठीक है। सो दैट इज वाई, क्योंकि तेजस, तेजस एज इन गर्मी या फायर, उससे रिलेटेड है,
तो इसीलिए गर्मी के सीजन में पित्त हाई हो सकता है। समझ रहे हो? हाँ, हाँ, ऐसा समझ सकते हो। अगर बैलेंस्ड है तो माइंड में बैलेंस के क्या क्या चीज़ें, इंटेलिजेंस हाई रहता है, मेमोरी अच्छी होती है, और डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से हो सकता है। बॉडी में इसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है, आईज बहुत अच्छी रहती हैं, ब्लड, स्किन, ब्रेन और हार्ट, इन सब में काफ़ी बैलेंस रहता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पॉजिटिवली चलता रहता है। अगर इम्बैलेंस हो जाए पित्त में तो माइंड में एंगर आ सकता है, गुस्सा, नफरत, दूसरों पर कंट्रोल करना, और हॉट टेम्पर या शॉर्ट टेम्पर समझ लो, ठीक है? बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाना। बॉडी में इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, एक्नेज हो सकते हैं, बहुत सारे पिंपल्स, और वो हाइपरटेंशन हो सकती है, नोजिया की फीलिंग हो सकती है, माइग्रेन यानी कि जो सर दर्द होता है माइग्रेन वाला वो हो सकता है, और एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस इज अबाउट बैकफ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है? सो उसकी वजह से इम्प्लांट्स हो जाते हैं इन द फेलोपियन ट्यूब और ओवरी, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। एंड देन देयर इज वात। वात इज फाउंड, इससे रिलेटेड सीजन इज ऑटम एंड अर्ली विंटर। अगर बैलेंस है तो माइंड काफी क्रिएटिव रहता है, स्पिरिचुअल रहता है, और ट्रैंक्विलिटी रहती है, और बॉडी से रिलेटेड सारे मूवमेंट्स काफी स्टेबल रहेंगे, ब्लड फ्लो नॉर्मल रहेगा, नर्व इम्पल्सेस अच्छे होंगे, आप अच्छे से मतलब बहुत जल्दी से एक्शन ले पाओगे, एक्टिव रहोगे, और इमोशंस आपके बैलेंस्ड रहेंगे। अगर इम्बैलेंस है तो माइंड में डर और एंजाइटी आ सकती है, स्ट्रेस की फीलिंग्स हो सकती हैं, काफ़ी टेंशन और वरीसम सा एटीट्यूड हो जाता है, और मेमोरी पुअर हो जाती है। इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दैट इज हाइपर एक्टिविटी, आप बहुत हाइपर एक्टिव हो सकते हो, स्किन आपकी ड्राई हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोपेरोसिस हो सकता है, और पीएमएसिंग। इसके बाद वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति एंड पुरुष। प्रकृति in yoga, Ayurveda and Gita is defined as personality of an individual। यानी कि योग में, आयुर्वेद में और गीता में प्रकृति को बोला गया है कि ये एक इंसान की पर्सनालिटी होती है, और पुरुष को डिफाइन किया गया है एज कॉन्शियसनेस। हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो पुरुष होता है, और प्रकृति और पुरुष यानी कि पर्सनालिटी और कॉन्शियसनेस को मिला करके हम बनते हैं एक्चुअली। इट सेज दैट स्वभाव इज डिटरमाइंड बाय द इंटरकनेक्शन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। यानी कि योग, आयुर्वेद और गीता में ये कहा गया है कि जो हमारा स्वभाव होता है, यानी कि जो हमारा जो ट्रू नेचर होता है, वो कैसे बनता है? प्रकृति और पुरुष यानी कि हमारी पर्सनालिटी और हमारी कॉन्शियसनेस को मिला करके, उसके इंटरकनेक्शन से स्वभाव बनता है। सो यहाँ पर एक दिया गया है ये कि प्रकृति है अनमेनिफेस्ट एंड प्रीमोडियल, मतलब ऐसे समझो कि हमारे में बचपन से मैनिफेस्टेड एक पर्सनालिटी है, ठीक है? इसमें अगर पुरुष यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस जोड़ दो तो क्या बनता है? महत या बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस हमारा। बुद्धि से अहंकार आता है, अहंकार यानी कि ईगो हमारा। इसको, अहंकार को तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक, जो कि अभी हमने पढ़े। ये गुण होते हैं तीन। सात्विक इज अबाउट माइंड, जिससे कि पांच कॉग्निटिव सेंसेस आते हैं हमारे, हियरिंग, टचिंग, सीइंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग। ये हमारे पांच सेंसेस आते हैं। इनको आयुर्वेद के हिसाब से या योग के हिसाब से बोलते हैं ज्ञानी इंद्रियां, ठीक है? और पांच एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, यानी कि काम करने के तरीके होते हैं हमारे, दैट इज स्पीकिंग, चीजों को पकड़ना, टू मूव, क्रिएटिंग एंड एलिमिनेटिंग।
इसको बोलते हैं कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां इज अबाउट आवर सेंसेस एंड कर्मेंद्रियां इज अबाउट द वर्क वी आर डूइंग, आवर बिहेवियर। ठीक है, तामसिक और राजसिक मिलकर के हमारे 5 सटल एलिमेंट्स बनाते हैं। तन्मंत्र बोलते हैं, सॉरी तन्मत्र बोलते हैं इनको। ये 5 बेसिक एलिमेंट से बने होते हैं जो अभी हमने पढ़े थे, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस।